So today I will continue with the probability topic, right? Yesterday I was teaching probability from file number 06, 07 and 08, which I have already shared. But I will share this file number 07 again because I have added the solution of the remaining numericals also of file number 06. Yesterday we have discussed this numerical also. This is of marginal, joint, conditional, intersection. By preparing probability matrix, how to solve this, and what is marginal, what is conditional, what is joint, what is union. That I have taught yesterday. So today I will continue with this type of sums only. In this year file, we have discussed up to question number 7. Right? The question number 7 was solved by you all, and I had explained it orally. But I have added the solution of this in this file number 07, which I will share again after the lecture. So I have added the solution of question number 7. The explanation was discussed in yesterday's lecture. So you can go through it. We will discuss today from the question number 8. So this is question number 8. Consumers were surveyed to assess relative number of visits to an electronic gadget store, Ajay sales as often, occasional and never, and the location of the store as at enclosed mall or not at enclosed mall. When variables are measured as nominal, such as this data, the results are mutually summarized in a contingency table. This table is given. Key consumers visit Ajay sales often, occasional or never. So एक variable तो ये है. These are 3 rows: often, occasional, never. And the store was located in enclosed mall or not in enclosed mall. That is given. And these 6 are the figures. Key consumer visited often and the store was in enclosed mall 60. This is 20, 35, 50. An enclosed mall ka total है 90, not an enclosed mall 105. And the grand total is 195. जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जब भी ऐसा टेबल वाला आएगा और प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो सबसे पहले तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लेना है. प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लेना है. और प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, कोई भी न्यू है आज? सब नंबर्स को डिवाइडेड बाय द टोटल. यस, सब नंबर को डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल, यानी टोटल का भी टोटल 195. All the numbers including 195 you will divide by 195. और डेसिमल में आएगा तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. बाकी सब कुछ सेम ही लिखना है. इतने ही तुम्हें रो बनाने हैं, इतने ही कॉलम बनाने हैं. खाली नंबर्स की जगह हम उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, which I have done here already in my solution. Up to 3 digit I have prepared this. तो तुम लोग भी बना सकते हो. ये देखो क्या क्या आ रहा है, सब लोग लिख सकते हो, है ना. It is very easy. बना रहे हो तुम लोग कोई? Anyone is preparing it? Yes, I will wait. मैं तो पूरा सॉल्यूशन सबका बना ही दिया है, वो फाइल तो मैं शेयर कर ही दूंगा. बट तुम लोग सॉल्व करोगे तो लाइव में खाली वही बेनिफिट है कि प्रैक्टिस होगा. दैट्स इट. बट ये सारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है, इसमें जो 12 सम है वो सबके सब बहुत ही इजी है. हम और भी सम डिस्कस करेंगे, बट एक बार हम लोग ये 12 सम ही करेंगे, जब बाकी डिविजन्स में और सिखा देंगे या मिड सेमेस्टर के पहले तो हम ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल दिस टॉपिक.
बट yesterday also I told कि ये 12 सम में से जो लास्ट के 7 सम है, लास्ट के 6 सम है, 7 सम है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बार हमारा प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन जाता है ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो प्रोबेबिलिटी पूछते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन है, ये 3 और ये 5 वर्ड पे फोकस कर। जो भी रो और कॉलम्स के नाम है ना, वो वर्ड्स पे तुम्हें फोकस करना है। क्वेश्चन में सिर्फ एक नाम है कि ऑफेंट है, ओकेशनल है, नेवर है, या एनक्लोज्ड और नॉट एनक्लोज्ड है, खाली 5 में से कोई भी एक ही नाम है, तो वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, यानी सिर्फ उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। अगर दो नाम है तो तुम्हें ये देखना है वर्ड और है, एंड है, कि गिवन है। If both names are there, एक नाम यहाँ से है और एक नाम यहाँ से है, दो नाम है, तो हमें वर्ड ये देखना है और है कि एंड है कि गिवन है। और है तो वो यूनियन है, एंड है तो वो इंटरसेक्शन है, और गिवन है तो वो कंडीशनल है। इंटरसेक्शन और जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है वो हमें डायरेक्ट टेबल से मिल जाता है। सर आपने क्या बोला? एंड है तो इंटरसेक्शन है, और है तो यूनियन, यूनियन है, और गिवन वर्ड है तो इट इज कंडीशनल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कल मैंने ये भी बताया था, वो तो पता है होना चाहिए सबको, जो स्टार्टिंग में ही है, कि प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद मार्जिनल हमें डायरेक्ट टेबल से मिल जाएगा, इंटरसेक्शन भी डायरेक्ट टेबल से मिल जाएगा, यूनियन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कंडीशनल के लिए भी हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो ये जो टेबल वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये 4 में से ही कोई तो वो लोग पूछेंगे। वो रो और कॉलम में से सिर्फ एक नाम है तो मार्जिनल, दो नाम है तो वर्ड पे डिपेंड करेगा, और एंड और गिवन वर्ड, राइट, क्लियर है। तो इसका सबका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगा अगर, तो ये फिगर्स आएंगे, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस मैंने लिया है, ठीक है ना। और ये भी देखना है बाद में तुम्हें कि इसका टोटल 1 आना चाहिए, कॉलम्स का टोटल और रो का टोटल, टोटल का टोटल शुड बी 1, और ये रो का टोटल, द टोटल ऑफ बोथ साइड शुड बी 1। कभी कभी 1.01 आ सकता है अगर हमने राउंडिंग ऑफ प्रॉपर नहीं किया है, बट दैट इज फाइन, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब ये टेबल सबके पास होना चाहिए क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, ठीक है। ये टेबल सबका बन गया। टेबल कैसे बना ये सबको क्लियर है ना। We have divided all the numbers by the grand total. 60 divided by 195, 25 divided by 195, like that. अब फर्स्ट है, what is the probability of selecting randomly a consumer? अब इसमें मैंने बोला ए पार्ट में ये 5 में से एक वर्ड है कि 2 वर्ड है, ये 5 वर्ड ढूंढने, बाकी वर्ड्स को मारो गोली, बाकी वर्ड्स नहीं देखने। ऑफेंट, ओकेशनल, नेवर, एनक्लोज, नॉट एनक्लोज में से ए में क्या वर्ड्स है? व्हाट आर द वर्ड्स आउट ऑफ दिस 5 इन ए पार्ट? क्या है इधर? Often. तो मतलब ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंट, मार्जिनल हो गया, राइट। हाँ, तो 80 वाला जो आंसर है वो है। ये ऑफेंट का टोटल जो है ये तुम्हारा आंसर। और मैंने बोला था कि मार्जिनल क्या क्या होता है, ये जो भी टोटल वाला, ये 0.462 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनक्लोज्ड। 0.538 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनक्लोज्ड। 0.410 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकेशनल है 0.308, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर है 0.282। ये जो भी टोटल होता है ये मार्जिनल होता है। 3 रो और 2 कॉलम है तो 5 मार्जिनल होगा, 2 रो 2 कॉलम है तो 4 मार्जिनल हो सकता है। और ये जो भी बीच में होता है ये क्या होता है, कोई बताएगा बीच वाला?
दिस आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन. बीच में जो होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, राइट? So 308 is the intersection of offend and enclosed. 0.102 is intersection of offend and not enclosed. 0.128 is intersection of occasional and enclosed. Occasional and not enclosed. Right? तो ये टेबल में जो भी बीच में है वो सब इंटरसेक्शन है, जो भी टोटल में है वो मार्जिनल. तो ए पार्ट तो क्लियर है सबको. अभी बी पार्ट में क्या बोला है? J stores in an enclosed mall. एक वर्ड आ रहा है कि दो वर्ड आ रहे हैं? रो और कॉलम में से एक वर्ड है कि दो वर्ड है? बी वाला. फर्स्ट में तो हाँ, ओके, सेकंड में बी. यस, बी. ए तो वी हैव डिस्कस्ड. नो, बी वन. इसमें एक वर्ड है कि दो वर्ड है? enclosed mall है. एक ही वर्ड है ना खाली. Of this five, only one word is there. तो मतलब enclosed का marginal ढूंढना है हमें. तो enclosed का marginal कौन सा होगा? enclosed का marginal from this table. 0.462. Yes, 0.462. तो visit store in an enclosed mall एक ही word है. तो probability of enclosed ढूंढना, so that is 0.4. राइट, क्लियर है ना यहाँ तक? देन द नेक्स्ट, अभी तुम लोग बताओ इसमें क्या है? एक वर्ड है कि दो वर्ड है? दो वर्ड है, enclosed और often. इंटरसेक्शन है. 60 वाला है. क्या है? नहीं, बीच में वर्ड क्या है? और है तो क्या होता है? इंटरसेक्शन. यूनियन. यूनियन. तो देयर इज अ वर्ड और, है ना? एंड दो वर्ड है, एक रो का और एक कॉलम का. तो दिस इज योर यूनियन. और यूनियन कैसे फाइंड करना है? मैंने बोला ऑलवेज बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. टेबल से नहीं मिलेगा, है ना? और यूनियन का फॉर्मूला क्या है? अगर दो इवेंट है ए और बी, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे दो इवेंट क्या है? एक है एनक्लोज्ड और एक ऑफेंड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनक्लोज्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंड माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एनक्लोज्ड एंड ऑफेंड, ये उसका फॉर्मूला बनेगा. राइट? और है, और मीन्स यूनियन. यहाँ पे मैंने यू लिखा है. तो जब भी यूनियन है तो जो भी दो प्रोबेबिलिटी है दोनों का मार्जिनल पहले ऐड करना है. एनक्लोज्ड और ऑफेंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनक्लोज्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंड एंड इंटरसेक्शन इन दोनों का माइनस कर. और मार्जिनल और इंटरसेक्शन हमें टेबल से मिल जाएगा. एनक्लोज्ड का प्रोबेबिलिटी ये 0.462, ऑफेंड का प्रोबेबिलिटी ये टोटल 0.410, और एनक्लोज्ड और ऑफेंड का इंटरसेक्शन ये 0.308. एनक्लोज्ड एंड ऑफेंड का इंटरसेक्शन, तो वो मैंने माइनस किया. ये सब टेबल से मिलेगा. तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.564. इजी है, समझ रहे हैं सबको? और वर्ड का यस, चिन्मयी क्लियर है? आयशा, ईशानी, केदार, मोहित, मुफुस, समृद्धि, सुमैया, सबिर. हाँ सर, हाँ सर. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज, अब इसमें रो और कॉलम में से एक वर्ड है कि दो वर्ड है? ये पांच वर्ड जो रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग है, often and enclosed है तो इंटरसेक्शन आएगा. इसमें ऑफेंड और एनक्लोज दोनों वर्ड है, और बीच में क्या है? दोनों वर्ड के बीच में एंड है. एंड है मतलब ये इंटरसेक्शन है. ये और था तो ये यूनियन था. इंटरसेक्शन तो हमें डायरेक्ट टेबल से मिल जाएगा. ऑफेंड एंड एनक्लोज्ड का इंटरसेक्शन, यानी जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे जो भी नंबर है, तो इंटरसेक्शन वी विल डायरेक्टली गेट, है ना? तो एनक्लोज्ड एंड ऑफेंड,
तो एनक्लोज्ड एंड ऑफेंड मतलब ये ऑफेंड और एनक्लोज्ड, ये वाला सेट जो 0.308 है। तो दैट इज योर आंसर ऑफ बी। तो मार्जिनल और इंटरसेक्शन डायरेक्टली टेबल से मिलेगा, यूनियन और कंडीशनल है तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। देन लास्ट ई में क्या है, अभी एक वर्ड है कि दो वर्ड है, दो हेडिंग एंड कॉलम। गिवन दैट है तो कंडीशनल आएगा। हाँ, लेकिन कौन से दो वर्ड है फ्रॉम दिस रो एंड कॉलम? ऑफन एंड एनक्लोज्ड। ऑफेंड और एनक्लोज्ड, यानी ये वाला और ये वाला वर्ड है। और यहाँ दिया है गिवन विजिटेड अजय सेल्स स्टोर ऑफेंड गिवन दैट द कंज्यूमर विजिटेड द स्टोर इन एन एनक्लोज्ड। अब गिवन कौन सा है, ऑफेंड गिवन है कि एनक्लोज्ड गिवन है? एनक्लोज्ड गिवन है। एनक्लोज्ड गिवन है। तो जो गिवन है वो राइट में आता है और जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है वो लेफ्ट में। कोई भी गिवन होता है तो हम उसको लिखते कैसे हैं, जो गिवन है वो स्लैश के बाद और जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है वो पहले लिखते हैं। तो विजिटेड स्टोर ऑफेंड गिवन इन एन एनक्लोज्ड मॉल, तो हमें क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंड स्लैश एनक्लोज्ड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंड गिवन दैट इट इज इन एनक्लोज्ड मॉल। तो कभी भी ये कंडीशनल वाला अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो रूल क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन इज द न्यूमरेटर। ऑफेंड एंड एनक्लोज्ड का इंटरसेक्शन इज योर न्यूमरेटर और जो भी गिवन है उसका प्रोबेबिलिटी इज योर डिनोमिनेटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज द न्यूमरेटर डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी of what is already given. Words A भी डालो वहां पे, कुछ भी डालो। तो कंडीशनल का फॉर्मूला भी बहुत इजी है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B निकालना है तो न्यूमरेटर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B और डिनोमिनेटर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो राइट में। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंड स्लैश एनक्लोज्ड निकालना है तो दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर और जो गिवन है जो राइट साइड में है उसका प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर। तो ऑफेंड एंड एनक्लोज्ड हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये है 0.308 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनक्लोज्ड है 0.462। तो 0.308 डिवाइड बाय 0.462, तो योर आंसर विल बी 0.666666। So I have rounded it off to 0.667. तो ये क्वेश्चन, इस तरह का टेबल वाला क्वेश्चन आने का चांस पूरा 99.99%। So sorry to interrupt, but how did you get 0.308? I joined late. This is offend and enclosed, है ना, इसका Yeah. मतलब इंटरसेक्शन। तो ये मैंने कल भी बताया था कि जो इंटरसेक्शन होता है वो हमें टेबल से मिल जाता है डायरेक्ट, है ना। Yes. तो अब ये टेबल तो हमने बनाया है ना यहाँ पे Yes. टेबल से, और इसमें Okay. enclosed is this and offend is this, दोनों का इंटरसेक्शन ये है ना, this, Yes. right? Yes. So this I got from here 0.308, right? और Yes. डी पार्ट में पूछा भी था तो हमारे पास डी पार्ट में भी था, बट वी कैन टेक फ्रॉम द टेबल आल्सो। और जो मार्जिनल होता है वो सब टोटल होता है ये, है ना। This 0.462 is the probability of enclosed, 0.538 is the probability of not enclosed, है ना। और वैसे ही यहाँ पे भी ये जो तीन है ये भी मार्जिनल है। तो 0.410 is the probability of offend, 0.308 is the probability of occasional, 0.282 is the probability of never, right? Yes, sir. Clear to everyone? बस देखो बहुत क्या कुछ, और ना तुम लोग इसमें ना ये एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। लास्ट ईयर ये सब आया था और इसमें ना ग्रामेटिकल दिमाग नहीं लगाना, ग्रामेटिकल दिमाग नहीं लगाना है। खाली पहले क्या स्टेप है, ये टेबल दिया है और इसको क्या करना है, तुम्हें सीधा प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, सारे नंबर को ग्रैंड टोटल से डिवाइड करके। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आ गया, उसके बाद ये याद रखना है कि सर ने बोला है कि ये टोटल वाले मार्जिनल है ना।
तो ये भी सबको बस याद रखना है कि ये जो नीचे वाला है ये एनक्लोज का प्रोबेबिलिटी है, ये नॉट एनक्लोज का है, ये ऑफेंड का है, ये ओकेजनल का, ये नेवर है। और ये जो बीच वाले नंबर है, ये जो बीच वाले है, ये इंटरसेक्शन है, ऑफेंड एंड एनक्लोज, ऑफेंड एंड नॉट एनक्लोज, ओकेजनल एंड एनक्लोज, लाइक दैट। तो 6 इंटरसेक्शन और 5 मार्जिनल हमारे पास टेबल में ऑलरेडी है, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या करने का, स्टेटमेंट कितना भी बड़ा छोटा होने दो, तुम्हें खाली जब भी ये पढ़ते हो ना, तो ये रो के जो वर्ड्स है और कॉलम में जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स तुम्हें ढूंढने हैं वहां पर। टोटल 5 वर्ड्स है, तो ये 5 वर्ड में से वहां पे क्या वर्ड है। अगर सिर्फ सिंगल वर्ड है तो उसका मार्जिनल वाला आंसर हो जाएगा। 2 वर्ड है तो फिर तुम्हें ये देखना है कि 2 वर्ड के बीच में और है, एंड है कि गिवन वर्ड है, और है तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन, गिवन है तो कंडीशनल। और उस हिसाब से तुम्हें यूनियन और कंडीशनल में फॉर्मूला यूज करना है, और मार्जिनल और इंटरसेक्शन डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा। इतना ही स्टेप्स है ये सम को सॉल्व करने के लिए। इतना ही कॉन्सेप्ट याद करके करोगे, कॉलेज में कोई भी मेथड सिखाए, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आए, वर्ड्स खाली में हो, तो अभी नेक्स्ट वाला भी डिस्कस करते हैं। ये सम क्लियर है ना, कुछ भी इसमें तो डाउट नहीं है। नेक्स्ट सम एक और हम इसका डिस्कस करते हैं, राइट। और वो देखो सबको खुद से ही आ जाएगा। अभी ये है, पहले तो इसका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लोगे तुम लोग। अब इसका टोटल नहीं Yes, sir. टोटल है, वो तो तुम लोग को आता है ना लेने। यस सर। टोटल कैसे आएगा, 115 प्लस 135 250, या 120 प्लस 130 करोगे तो भी 250। और कभी कभी ये टोटल कॉलम भी हो सकता है नहीं दिया हुआ, ये टोटल कॉलम ही नहीं दिया, तो टोटल लेना है रो वाइज कॉलम वाइज, एंड देन यू हैव टू टेक द ग्रैंड टोटल आल्सो। इवन इफ टोटल इज नॉट गिवन, यू विल प्रिपेयर द टोटल कॉलम्स, ठीक है। तो ये ग्रैंड टोटल विल बी 250, तो you will divide all the number by 250 and you have to prepare the same table, that is your probability matrix. और पूरा क्वेश्चन ही तुम लोग सॉल्व कर दो, ये 3 भी फाइंड कर लो, आंसर लिख लो, बोलो मत, फिर देखो राइट जा रहा है कि नहीं। तब तक किसी को भी कुछ पूछना है तो कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग। ये क्वेश्चन के बाद जो लास्ट के 3 क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम या बेसियन थ्योरम बोलते हैं, which is also related to conditional probability. और वो वाले सम सिखाऊंगा 3, फिर ये फाइल तो पूरा हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो बन गया होगा ना सबका, फटाफट बनाना है एकदम, वो पेंसिल से लाइन मत ड्रॉ करो, अभी तो खाली नंबर्स कैलकुलेट करके लिखो। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर भी लिख के रखो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या समझ रहा है।
मैंने अभी बताया कि सिर्फ रो और कॉलम के वर्ड्स को ढूंढना है क्वेश्चन में, और ये आइडेंटिफाई करना है एक ही वर्ड है तो वो मार्जिनल है, दो वर्ड है तो वो यूनियन है कि इंटरसेक्शन है कि वो कंडीशनल। एंड देन एज पर asked in the question, if it is marginal and intersection, you will directly get the answer from the probability matrix. If it is union or conditional, you will have to apply the formula. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का किसी ने लिखा आंसर? सब लोग बना रहे हैं ना? अब मैं खाली फर्स्ट पहले डिस्कस करता हूँ। What is the probability that both increased and paid dividend? तो एक तो पेड डिविडेंड वर्ड है और एक इंक्रीज वर्ड भी है, दो वर्ड है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट मार्जिनल, और बीच में वर्ड क्या एंड है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज व्हाट? Intersection. इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? इंक्रीज एंड पेड डिविडेंड, दिस टू, यानी ये वाला सेल, यहाँ पे तो नंबर है, हमने इसका बनाया होगा, ये तो टेबल बनेगा, दैट इज 0.14. This will be your answer, right? Increased and paid dividend. Intersection of increase and paid dividend. Right, clear. And next में क्या है? What is the probability that a randomly selected stock neither paid dividend nor increase in price? अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ थोड़ा अभी मीनिंग समझना पड़ेगा। Neither paid dividend मतलब क्या होता है? No dividend, है ना? तो नो डिविडेंड, और नॉर इंक्रीज इन प्राइस मतलब No price increase. तो नो इंक्रीज एंड नो डिविडेंड, राइट? 50. यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि सर और वर्ड भी नहीं है, एंड वर्ड भी नहीं है, गिवन वर्ड भी नहीं है ना? ऐसा भी बहुत रेयर हो सकता है कि और एंड और गिवन तीन वर्ड नहीं है, तो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि ये यूनियन है कि इंटरसेक्शन है कि गिवन है? सर इंटरसेक्शन है क्या? Yes, it is Intersection है intersection सर। because neither और nor मतलब both, neither और nor मतलब दोनों एक साथ, ठीक है ना? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, तो neither means negative, nor means negative. तो therefore no dividend और no price का intersection which is this cell. तो इस सेल में क्या है हमारा आंसर? 0.20. तो that is your answer. तो कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट रेयरली आएगा कि जिसमें और एंड और गिवन वर्ड नहीं है, बट वो पढ़ के मतलब समझना पड़ेगा। 5 में से एक स्टेटमेंट ऐसा आने का चांस सिर्फ 1% है, 99% तो मोस्टली यू विल गेट अ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स। सर मतलब अगर सेंटेंस में बोथ वर्ड आता है तो हम लोग को इंटरसेक्शन ही लेंगे। यस यस। ओके। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या वर्ड है? एक तो है नॉट पेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन द स्टॉक भी है, तो एक क्या है? नॉट पेड डिविडेंड, और एक है इंक्रीज इन प्राइस। नो डिविडेंड और इंक्रीज का कंडीशनल। अब कंडीशनल में आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि व्हाट इज गिवन, वो सेकंड आएगा। तो नॉट पेड डिविडेंड और इंक्रीज इन प्राइस में से व्हाट इज गिवन? नॉट पेड डिविडेंड। नॉट पेड डिविडेंड। तो हम उसको लिखेंगे कैसे?
probability of increase slash no dividend, है ना? और इसका कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन वो न्यूमरेटर हो जाएगा. इंक्रीज एंड नो डिविडेंड का इंटरसेक्शन इज योर न्यूमरेटर और जो भी गिवन है इसका मार्जिनल इज योर डिनोमिनेटर. और ये इंटरसेक्शन इंक्रीज एंड नो डिविडेंड एंड इंक्रीज 0.34 and probability of no dividend that is 0.54. So 0.34 upon 0.54 ये 0.62976 ऐसे कुछ आएगा. तो राउंड ऑफ करके मैंने इसको 0.63 लिख दिया. This is also clear ना? So Yes. अब और भी है इसमें. Fourth, if a stock is selected at random, what is the probability that it paid dividend? इसमें एक वर्ड है कि दो वर्ड है? एक वर्ड है, पेड डिविडेंड. पेड डिविडेंड. तो पेड डिविडेंड यानी इसमें से कौन सा आएगा? डिविडेंड वाला टोटल. डिविडेंड वाला टोटल that is 0.46. So that is your probability of paid dividend. अब तुम लोग ना शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो. मैंने तो फुल फॉर्म लिखा है. मतलब डिविडेंड को यहाँ ब्रैकेट में डी लिख दो, नो डिविडेंड को एनडी, प्राइस इंक्रीज को पीआई, इसको एनपी, कुछ भी. तो तुम लोग जब ये सॉल्व करते हो तो वहां पे पूरा वर्ड लिखने की जगह वो नोटेशंस यूज कर सकते हो. राइट? इन माय एक्सेल फाइल ना आई हैव यूज्ड नोटेशंस ओनली, बट हियर ये तो मैंने आज बनाया तो मैंने फुल सारे वर्ड्स ही लिख दिए कि ठीक है ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो. और मैंने खाली ये हैंड रिटन प्रेजेंटेशन के लिए बनाया कि आई वुड हैव एक्सप्लेन दिस इन एक्सेल आल्सो, बट एक्सेल में थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वो सब प्रॉपर लिखने में दिखने में अलग दिखता है. सो ये बहुत क्लियर है. अभी लास्ट वाला क्या है ये भी सब लोग जज करो खुद से. देन समवन एक्सप्लेन आफ्टर 30 सेकेंड्स. कितने वर्ड है? प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टॉक पिक्ड एट रैंडम पेड डिविडेंड और इंक्रीज इन प्राइस. पेड डिविडेंड और इंक्रीज इन प्राइस दो वर्ड है. तो ये या तो यूनियन या इंटरसेक्शन या कंडीशनल. यूनियन है क्योंकि और है. तो वो फॉर्मूला से अभी सब लोग निकालो. यूनियन है, यूनियन ऑफ पेड डिविडेंड एंड इंक्रीज इन प्राइस. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कोई बताओ? पेड डिविडेंड और इंक्रीज इन प्राइस का फॉर्मूला. Probability of paid dividend plus probability of increase in price minus probability of paid dividend intersection increase in price. परफेक्ट. क्लियर है ना? सबको समझा ना? ये तो कोई मैंने यहाँ पे लिखा है. आंसर देखो यही आ जाएगा. तो है ना? सिंपल है कि नहीं है ये? हाँ सर है. है सर, सिंपल है. ये 15 मार्क्स का आएगा तो फुल 15 आएंगे ना तुम लोगों को? हाँ आएंगे सर. हाँ सर आएगा. और इसमें बहुत सारे सम्स है. अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं तो सॉल्व भी है. ये तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है. बट एक चीज मैं और अभी सिखाऊंगा इस सब में. कभी कभी क्या मैं ये बोलूं, अभी एक ये क्वेश्चन है समझो, तो ये वाला क्वेश्चन है कि मैं बोलूंगा कि गिवन अ स्टॉक, तुम लोग सुनो या लिखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टॉक सिलेक्टेड एट रैंडम है ना हैज पेड डिविडेंड एंड नॉट पेड डिविडेंड. इसका आंसर मुझे कौन निकाल के बताएगा?
What is the सर probability टोटल वाला कॉलम आएगा selected is प्राइस paid dividend and not paid dividend? दो वर्ड है, एक है पेड डिविडेंड, एक है नॉट पेड डिविडेंड, और बीच में एंड वर्ड है, दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना। सर दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल कैसे है पर? यस, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि दोनों नाम जो है ना, वो या तो दोनों नाम रो के है या दोनों नाम कॉलम के है। तो इफ बोथ द नेम्स आर ऑफ कॉलम और बोथ द नेम्स आर ऑफ रो, उसका इंटरसेक्शन इज ऑलवेज जीरो। Intersection is not possible of both the words are in row or both the words are in column. वो दिखाने के लिए मैं एक पेपर का कुछ बताता हूँ जिसमें ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये वाला एक वर्ड है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं खाली इसका लास्ट पार्ट ही डिस्कस करूंगा। पहले तो ये देखो क्वेश्चन है कि यहाँ पे फ्रेगनेंस सोप प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, और कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन एक्टिव, अ वेल नोन एंड पॉपुलर ब्रांड। द कंपनी हैज एंगेज्ड अ मार्केट रिसर्च फर्म टू कंडक्ट अ सर्वे एंड फाइंड आउट द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस ब्रांड। तो क्या तुम्हें ब्रांड के बारे में पता है? तो कितने लोगों ने यस बोला, कितने लोगों ने नो बोला, और कितने लोगों का नो ओपिनियन था? और ये 4 सिटी में सर्वे किया गया। तो यहाँ पे जो है ना 3 रो है और 4 कॉलम, तो ऐसे बड़ा सम भी आ सकता है, बट कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम 4 रो, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, कुछ भी होने दो, मेथड हमारा कुछ चेंज ही नहीं होने वाला। ये तो जो टेबल दिया है सेम बनाना है, सबको हमने 1000 से डिवाइड किया, ये हमारा आ गया। ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारा मार्जिनल है, और ये जो ब्लू कलर में है ये हमारा इंटरसेक्शन है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, द रिस्पोंडेंट प्रिफर्स एक्टिव, प्रिफर्स एक्टिव मतलब यस, तो यस का जो भी प्रोबेबिलिटी है 0.5 है। द रिस्पोंडेंट प्रिफर्स एक्टिव, अब ये देखो यहाँ यस वर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे को प्रोडक्ट का नाम दिया। वो अगर प्रिफर करता है तो वो यस बोलेगा, प्रिफर नहीं करता है तो नो बोलेगा। तो प्रिफर एक्टिव मतलब यस और नॉट प्रिफर एक्टिव मतलब नो। सिटी का तो नाम रहेगा, तो ये खाली प्रिफर एक्टिव मतलब यस, प्रिफर एक्टिव एंड इज फ्रॉम अहमदाबाद, तो ये तो इंटरसेक्शन है। तो अहमदाबाद और प्रिफर एक्टिव यानी ये यस 0.1 है। फिर रिस्पोंडेंट डज नॉट प्रिफर एक्टिव मतलब नो और ग्वालियर, तो नो और ग्वालियर का यूनियन, तो मैंने नो के लिए एन और ग्वालियर के लिए जी लिया है, और फिर मैंने इसको फाइंड करेंगे, ये भी तुम लोगों को आ जाएगा। ये रिस्पोंडेंट इज फ्रॉम लखनऊ गिवन दैट प्रिफर एक्टिव, तो गिवन में क्या है यस है, और प्रोबेबिलिटी ढूंढना है लखनऊ का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ L/Y, Y यानी यस। अब ये वाला तुम लोग बताओगे, ये वाला क्या बोला है, रिस्पोंडेंट फ्रॉम ग्वालियर और रायपुर, तो है तो यूनियन, लेकिन ग्वालियर और रायपुर दोनों वर्ड कॉलम वाले ही है। दोनों वर्ड क्या है? कॉलम वाले, तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं। हाँ, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पूछेंगे दोनों वर्ड रो में है या दोनों वर्ड कॉलम में है और उसका इंटरसेक्शन पूछा, तो तुम लोगों को 0 लिखना है और लिखना है इट इज नॉट पॉसिबल। यस सर। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं पूछा है, यहाँ यूनियन पूछा है। अब यूनियन पूछा है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यूनियन पूछा है तो ये क्या है, आर यानी रायपुर, जी यानी ग्वालियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रायपुर यूनियन ग्वालियर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रायपुर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्वालियर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रायपुर इंटरसेक्शन ग्वालियर। सेम यूनियन अगर पूछा है तो यूनियन पॉसिबल है, इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है।
तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रायपुर कितना है, ये 0.24, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्वालियर कितना है 0.16, तो 0.24 प्लस 0.16 माइनस 0 करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन 0 होगा, तो 0.40 आंसर आ जाएगा। तो यूनियन पूछा है तो उसको 0 नहीं लिखना है, इंटरसेक्शन को डायरेक्टली 0 लिख के लिखोगे नॉट पॉसिबल, और यूनियन पूछा है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बट उसमें जो इंटरसेक्शन माइनस करते हैं वो 0 लोगे, बट बचे हुए दोनों का तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा। समझ में आया ये सबको? हाँ सर। इससे ज्यादा Yes, sir. और कुछ ट्विस्ट आएगा ही नहीं, 15 मार्क्स पक्का जेब में है अगर इतना समझ में आ गया तो। कुछ और पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी टेबल छोटा होने दो, बड़ा होने दो, नाम XYZ देने दो, कॉलम हेडिंग रो हेडिंग में क्या वर्ड्स है वो स्टेटमेंट पे ढूंढना है, मीनिंग समझना है, खत्म। क्लियर? सो नाउ आई विल मूव टू द बेस थ्योरम। ये जो 10, 11, 12 है ये बेस थ्योरम के है, ये भी बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है इजी मेथड और एक है बहुत इजी मेथड। तो तुम लोगों को कौन सा सीखना है, इजी वाला कि बहुत इजी वाला? विच वन यू विल प्रेफर? दोनों सीखना है सर। दोनों सिखा दो सर। दोनों सिखा दो? ठीक है, हाँ सर। दोनों ही सिखा देता हूँ। मैं ना लास्ट ईयर तक तो बहुत इजी वाला नहीं सिखाता था, इजी वाला सिखाता था। देखो ये मेरे इजी वाले मेथड के 3 सम, ये 3 सम लास्ट टू लास्ट ईयर के है, ये 3 सम, और इसमें मैंने इजी वाला मेथड सिखाया था, राइट? बट हुआ क्या, लास्ट ईयर ये इजी वाला मेथड भी ना बहुत लोगों को हार्ड लग रहा था, तो फिर लकीली मेरे को एक और मेथड एक बुक में मिला जो इससे भी इजी। तो अब मैं पहले तो बेस थ्योरम क्या होता है और कैसे हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम लोगों को जब दोनों मेथड आ जाएंगे ना तो तुम लोग भी बहुत इजी वाला मेथड ही फॉलो करने वाले हो, ठीक है? बट हार्ड तो किसी को लगेगा ही नहीं। जो फर्स्ट मेथड है इजी वाला वो में भी फिर भी किसी को हार्ड लग सकता है, सेकेंड वाला तो किसी को भी हार्ड लगेगा ही। अब बेस थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो तुम लोग बोलोगे अरे सर फिर क्यों हमें बेस थ्योरम सीखना है? वी नो हाउ टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट कभी कभी तुम्हारे पास ये नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, तो तुम कैसे ये वाला कंडीशनल ढूंढोगे? अगर ये दो है तो चलो ये फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो बेस थ्योरम इसलिए बनाया गया है कि वो वर्ड प्रॉब्लम जब आएगी, व्हेन डिटेल इज गिवन सच दैट कि यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम भी कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है। अब मैं अगर पहले तो तुम लोग बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लोगे, जो है ये फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। यानी तुम्हें अगर ये ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और इस फॉर्मूला को हम बेस थ्योरम बोलते हैं। इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम। अब ये फॉर्मूला और जो कंडीशनल का मैंने कल फॉर्मूला दिया था, या जो एक्सेल में है, एक तो ये लिख लिया तुमने, और ना ये एक्सेल वाला उसके बाजू में लिख लो, ये फर्स्ट वाला। तो फिर कंपेयर करके सोचो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। डिनोमिनेटर में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर तो सेम है,
न्यूमरेटर में डिफरेंस है ना। हाँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पे नजर डालोगे तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी न्यूमरेटर में है कंडीशनल में, और ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है, वही यहाँ पे बेस थ्योरम में उसका वो डाल दिया, पी ए इंटू पी बी स्लैश ए। तो देखो पी ए इंटू पी बी स्लैश ए, ये एक फॉर्मूला है ना इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन के इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया है डेट शिफ्ट, यानी फॉर्मूला वही है देखोगे तो जो हम यूज कर रहे हैं, ओनली द न्यूमरेटर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फॉर्मूला ऑफ द न्यूमरेटर, राइट राइट। यस सर। चलो ये भी याद नहीं रहता है सर, मेरे को तो कंडीशनल का मैं भूल गया, ये सब भी भूल गया, कुछ नहीं, सब भूल भी गए। तो ये बेस थ्योरम में ये फॉर्मूला तुम खुद से ही बना सकते हो। कैसे? अगर तुम्हें ए स्लैश बी ढूंढना है तो पहले इसका उल्टा लिख देना है। ए स्लैश बी है तो उसका उल्टा लिख दिया, प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वन। अपोजिट ऑफ दिस into probability of first divided by probability of second। तो ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। जो फर्स्ट मेथड है हमारा, उसमें तुम्हें ये दो फॉर्मूला और काम आएंगे। ये इंटरसेक्शन का तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ पे मैंने वर्ड्स अलग लिख दिए, राइट। तो यहाँ बी आएगा, बी मैंने भूल से डी लिख दिया है तो यहाँ पे डी आएगा। तो ये मत लिखो, इंटरसेक्शन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं, बट एक जो तुम लोगों को याद रखना है वो ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ना क्या बोलता है पता है? ये फॉर्मूला हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये किसमें बेस्ड है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये एक लॉ है। तो हमें ये क्या बोलता है कि अगर हमें कोई भी मार्जिनल ढूंढना है, अगर कोई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, तो वी कैन फाइंड दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बाय एडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ दैट इवेंट विद ऑल अदर इवेंट। यानी अगर मुझे बी का मार्जिनल ढूंढना है और बी का मार्जिनल नहीं दिया है, तो मैं बी का जिसके साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल है सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे मार्जिनल मिल जाएगा। ये समझा क्या जो मैंने बोला कि कोई भी मार्जिनल हमारे पास नहीं है तो वो इवेंट का जो दूसरे इवेंट के साथ इंटरसेक्शन है वो सारे इंटरसेक्शन को ऐड करेंगे तो मुझे वो मार्जिनल मिल जाएगा। सर आप एक बार प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में बताओगे? हाँ, तो वही अभी उसी पे ही आ रहा था। अब देखो एक बड़ा वाला एग्जांपल जो अभी हम यहाँ पे ग्वालियर वाला था, उसमें तुम्हें और क्लियरली समझ जाएगा। ये अब ये हमारा प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ना, राइट। हाँ। अब समझो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अहमदाबाद नहीं है, राइट। मतलब पूरा कॉलम ब्लैंक है? नहीं, पूरा कॉलम नहीं है ये तो। अभी क्या देखो, टेबल में तो हमारे पास सब कुछ है, मार्जिनल भी है, इंटरसेक्शन भी है, टेबल में ब्लैंक नहीं होगा। बट ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड में ना हमें क्या दिया है कि बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अहमदाबाद ढूंढो। ये पूरा टेबल नहीं है हमारे पास, पूरा टेबल नहीं है। और हमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है? अहमदाबाद का यस के साथ इंटरसेक्शन है 0.11। अहमदाबाद का इंटरसेक्शन किसके किसके साथ पॉसिबल है? अहमदाबाद ग्वालियर तो नॉट इंटरसेक्शन पॉसिबल है क्या? नो। अहमदाबाद रायपुर का इंटरसेक्शन पॉसिबल है? नो। अहमदाबाद यस और नो ओपिनियन में। अहमदाबाद का इंटरसेक्शन ये तीन के साथ पॉसिबल है खाली, है ना। वो तीनों, अगर ये तीनों हमें दिया है तो मैंने क्या बोला, ये तीनों को ऐड करो तो हमें अहमदाबाद का मार्जिनल मिल जाएगा। टेबल में भी तो वही कर रहे हैं ना हम। ये 0.20 इज द टोटल ऑफ दिस,
बट टेबल है तो वो तो हमें मिल जाता है, टेबल नहीं है और अलग से वर्ड में हमें इंटरसेक्शन दे दिया है, या हम इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटरसेक्शन, फिर सारे इंटरसेक्शन को ऐड करके हमें मार्जिनल मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझे। तो यही बोल रहा हूँ, मतलब टेबल में भी वही है, इंटरसेक्शन को ऐड करोगे तो दिस इज द टोटल ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन ओनली, ऑल दिस मार्जिनल आर नथिंग बट द टोटल ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन, और वही लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलता है। ठीक है, बट टेबल है तो हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। बट ये बेस थ्योरम अप्लाई होता है जब टेबल नहीं है, जब ऐसा है। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड सिखा, फर्स्ट मेथड किसी को टफ भी लगा अगर बाय चांस तो भी डरना नहीं है, इससे भी इजी मेथड है। तो भी अगर मैं सेकंड पहले सिखाऊंगा तो फर्स्ट ऑब्वियसली सबको हार्ड ही लगेगा। अब इसीलिए मैं ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने इस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो तो सेकंड मेथड से सॉल्व किया, बिकॉज दैट इज मोर इजी। यहाँ पे अभी क्या दिया है बेस थ्योरम में, assume that a factory has two machines. Past record shows that machine 1 produces 30% of the item of output and machine 2 produces 70% of the item. यहाँ पे सिंपल है कि एक फैक्ट्री में दो मशीन है और जितना भी माल उस फैक्ट्री में बनेगा वो दो मशीन ही बनाएगी। मशीन 1 जो है वो 30% बना रही है, तो मशीन 2 70%, इन दोनों का परसेंटेज 100 होना चाहिए और दोनों का प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। तो बेस थ्योरम में सबसे पहले ना तुम्हें दिया होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, 2 मार्जिनल दिया होगा या 3 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दिया होगा, और वो जो भी 2 या 3 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दिया है उसका टोटल 100%, या डेसिमल में दिया है तो उसका टोटल हमेशा 1 ही होगा। तो what will be always given, either 2 or 3 marginal probability। इसमें 2 दिए, वो नोट डाउन कर लेना है तुम्हें, है ना, मशीन 1 मशीन 2। तो मैंने यहाँ पे ये एक स्टूडेंट का हैंडराइटिंग है, ठीक है, 2000, उसको तो अभी अहमदाबाद में जॉब मिला है, यशवी सिंगल, राइट, इन फेडरल बैंक, एंड उसका पैकेज तो अच्छा है, 15 लाख, उसका CGPA भी अच्छा था 9.5। तो A1 और A2 उसने नाम दिया है मशीन को, यहाँ पे 1 और 2 जो था गया दिस, तो मशीन 1 को A1, मशीन 2 को A2, तो 30% मतलब 30/100, 70/100, तो 0.3, तो 2 marginals are given। Then what you should know is कि if 2 marginals are given, then 2 conditional will also be given। 3 marginal दिया है तो 3 conditional देंगे, 2 marginal दिया है तो 2 conditional देंगे, बस। या तो टोटल 4 ही नंबर होंगे पूरे वर्ड में, वर्ड प्रॉब्लम में, या 6 नंबर होंगे, उससे कम या ज्यादा पॉसिबल नहीं। तो 4 या 6 नंबर क्वेश्चन में दिए रहेंगे, 2 मार्जिनल 2 कंडीशनल, या 3 मार्जिनल 3 कंडीशनल। ये मार्जिनल है क्योंकि यहाँ पे कुछ और गिवन वर्ड और कुछ ऐसा है भी नहीं, और क्लियरली दिया है कि मशीन 1 ने इतना बनाया, मशीन 2 ने इतना बनाया। अब आगे क्या दिया है, फर्दर 5% of the item produced by machine 1 were defective। खाली यहाँ तक अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ते हो तो इसका क्या मीनिंग समझ रहे हैं, इसको मैं हिंदी में अगर बोलूं तो इसका मतलब है कि 5% आइटम जो मशीन 1 ने बनाई है या प्रोड्यूस की है वो डिफेक्टिव होती है। यानी ये गिवन है कि आइटम मशीन 1 से अगर बनी है, आइटम मशीन 1 से बनी है, दैट इज गिवन, और वो डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। तो डिफेक्टिव को हम डी लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव given that item was produced by machine 1 is 5%। तो ये कंडीशनल दिया है, और वैसे ही आगे का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 है डिफेक्टिव। तो मशीन 2 से बनी है
उसमें से 1% डिफेक्टिव होती है, तो मशीन 2 से बनी है वो गिवन है। तो सिंपल यहाँ पे समझा, 2 मार्जिनल है तो 2 कंडीशनल है, और सिंपल है कि जो भी मार्जिनल होगा ना वही हमेशा गिवन होगा। मार्जिनल जो भी होगा दैट वही तुम्हारा राइट साइड में आएगा, वो लेफ्ट में नहीं आ सकता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी समझ रहा है तो तुमने यहाँ 1 और 2 लिखा है, प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी 2, तो स्लैश के बाद ही 1 2 आएगा। पहले डिफेक्टिव को डी लो या पूरा वर्ड लिखो या जो भी नोटेशन लेना है। तो इसमें आइडेंटिफाई करने में तो कितना सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर। अब बोला क्या है इन लोगों ने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1 और मशीन 2। यानी अब हमने एक आइटम रैंडमली चूज किया और प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें ये पता है वो डिफेक्टिव है। यहाँ पे दिया है दैट द डिफेक्टिव आइटम, नाउ वी नो कि आइटम इज डिफेक्टिव एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन 1 से बनी थी या मशीन 2 से बनी। तो और एक और कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है इसमें कि अगर D/A1 दिया है तो जो वो लोग पूछेंगे वो A1/D और A2/D, जो गिवन है उसका उल्टा कंडीशनल वो लोग पूछेंगे। तो वो भी अगर नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन कुछ भी XYZ होने दो, जो कंडीशनल दिया है उसका उल्टा कंडीशनली पूछ सकते हैं बेस थ्योरम में, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं, क्वेश्चन नहीं भी समझा उसका उल्टा ही हमें फाइंड करना है, लिख देने का उसका उल्टा ही। सेंटेंस नहीं भी समझा ऊपर से भी गया, ये बस ये 4 बराबर आइडेंटिफाई कर लिया या 6 जो भी दिया है। और इसके जितने भी क्वेश्चन तुम देखोगे, ये 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट मेथड से सॉल्व है जो 2 साल पहले के है, और 3 क्वेश्चन तुम्हारे वाले जो सेकेंड मेथड से सॉल्व है, दोनों में शेयर कर दो। 6 क्वेश्चन कर लिए, कोई भी एक ही मेथड से करना है, दोनों मेथड प्रैक्टिस मत करना, जो तुम्हें ज्यादा इजी लगे या विच एवर यू आर कंफर्टेबल। अब फर्स्ट मेथड है एज पर बेस थ्योरम, अगर मुझे A1/D ढूंढना है तो A1/D का फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले जो पूछा है उसका उल्टा। A1/D है तो D/A1, फिर फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A1 तो है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ D नहीं है। नहीं तो बस फॉर्मूला में हम वैल्यू डालते, खत्म। तो ऑलवेज इन दिस फर्स्ट मेथड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ये फॉर्मूला तो बन गया, फर्स्ट स्टेप इज ये डिनोमिनेटर ढूंढना है, और ये डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? मार्जिनल है। और मार्जिनल हम कैसे ढूंढेंगे कि हम D का कितना भी इंटरसेक्शन पॉसिबल है वो ढूंढेंगे। D का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे और वो सबको ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन कैसे ढूंढेंगे सर? मेरे को तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला भी मैं भूल गया एग्जाम में। भूल गए, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बोला कि ये 2 दिया होगा या ये 2 या 3 दिया होगा, तो ये 3 है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2। अब D का फर्स्ट इंटरसेक्शन क्या होगा? इधर क्या वर्ड है? A1, और इधर क्या वर्ड है? D/A1। तो A1 कॉमन वर्ड्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो D का फर्स्ट इंटरसेक्शन। जो भी कॉमन वर्ड्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर A3 भी होता तो PA1 इंटू PDA1, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ D, PA2 इंटू PDA2। तो देखो यहाँ पे मैंने वही किया है, DNA1 का इंटरसेक्शन कैसे होगा? ये फॉर्मूला है। PDNA2, तो इंटरसेक्शन 2 ही होगा, अगर 2 दिया है तो 2 इंटरसेक्शन, 3 दिया है तो 3 इंटरसेक्शन। और करना कैसे है? एक मार्जिनल और उसका एक कंडीशनल, एक मार्जिनल और कंडीशनल, एक मार्जिनल और कंडीशनल मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन मिलता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो वो फॉर्मूला ऑलरेडी मैं यहाँ बता दूँ, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला।
नहीं भी याद रहता है तो ये याद रखो, दो मार्जिनल दो कंडीशनल दिया है तो एक मार्जिनल और एक कंडीशनल जो कॉमन है उसको और दूसरा मार्जिनल दूसरा कंडीशनल को मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन 2 आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, और इन 2 आए हैं तो दोनों को ऐड कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मिल गया। ये समझा? मतलब देखो, मैं तो कुछ लॉजिक कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला याद करो, ये करो, वो करो। मैं सिर्फ सॉल्व कैसे करते हैं उसका लॉजिक है। कुछ फॉर्मूला कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये मैथ्स है तो लॉजिक समझो, फॉर्मूला लगाओ, क्यों सर ये आया, क्यों वो आया। ऐसे तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है, वो तो सब कॉलेज में तुम्हें सिखाएंगे डिटेल में। मैं नॉलेज के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग कि तुम ये क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करके फुल मार्क्स ला सको, क्योंकि ये बेस थ्योरम तुम्हें कुछ काम तो आने नहीं वाला है आगे करियर में। ये काम क्यों आएगा? बस अभी मार्क्स स्कोर करने के। तो इसको हमें ज्यादा नॉलेज में डीप में क्यों पढ़ना? मार्क्स ही स्कोर करना है ना, हमें थोड़ी इस पे कुछ नॉलेज ज्यादा गेन करना है कि ये कहाँ से आया, कौन था बेस, कौन सी कंट्री का था, कब उसने ये इंट्रोड्यूस किया, क्या हुआ। क्लियर? तो ये क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गया। बस कुछ नहीं, ये तीनों है हमारे पास, D/A1 है, P(A1) है और प्रोबेबिलिटी डी भी है, तो A1/D आ जाएगा। और वैसे ही A1/ वो भी आ जाएगा, दूसरा, दोनों हम ढूंढ सकते हैं, राइट। A1/D आ जाएगा और फिर A2/D, ये A2 होना चाहिए, यानी वो दोनों आ जाएगा आंसर। तो उतना ही इजी है ये, उतना ही। और ये भी याद रखने का कि जब ये तुमने दोनों ढूंढ लिया तो ये जो आ रहा है ना, इसका टोटल 1 आना है। 3181 प्लस 0.6818 शुड बी अराउंड 1। कभी कभी 0.9999 ऐसा आ सकता है, दैट इज 1 ओनली, या 1.01 बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो सर वापस बताओ कौन से दो नंबर? जो भी हम दो ढूंढेंगे ना, मतलब ये कंडीशनल दिया था 2, तो 2 उल्टा ढूंढने का हमारे चांस है, इसका उल्टा 2 ढूंढ सकते हैं। तो ये जो दोनों 2 ढूंढेंगे हम बेस थ्योरम के फॉर्मूला से, इन दोनों का टोटल दैट वी विल बी फाइंडिंग, ओके ओके 1 आना चाहिए। दैट शुड बी 1, A1/D एंड A2/D, दिस शुड बी A2। समझा क्या? ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। और देखो 3 स्टेप क्या है, वापस मैं पूरा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट मेथड में 2 या 3 मार्जिनल दिया होगा, 2 या 3 कंडीशनल दिया होगा, ठीक है ना, और मार्जिनल का टोटल हमेशा 1 होगा और कंडीशनल हमेशा मार्जिनल से कम होगा, या हो सकता है ज्यादा भी हो, बट उसका टोटल 1 होना जरूरी नहीं है। और दूसरा मैंने क्या बोला, ये होने के बाद फर्स्ट स्टेप है तुम्हें इंटरसेक्शन ढूंढना है। और इंटरसेक्शन किसका ढूंढोगे? ये जो भी है इधर फर्स्ट, उसका A1 के साथ और उसका ही A2 के साथ। उसके लिए फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड 2 मल्टीप्लाई, थर्ड 2 है तो थर्ड 2, 2 या 3 इंटरसेक्शन मिलेगा। उन 2 या तीनों को ऐड करोगे तो मार्जिनल मिलेगा, और फिर सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। बस इतना ही स्टेप है फर्स्ट मेथड, राइट। क्लियर है? फर्स्ट मेथड में किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? क्लियर है पक्का? हाँ सर क्लियर है। अब सेकेंड मेथड पे आ जाए, उसके लिए डायरेक्ट मैं ये हार्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला। अब मुझे इसमें तुम लोग बताओ कितना मार्जिनल दिया है और कितना कंडीशनल दिया है, वो तो तुम लोग लिख सकते हो ना। 3 and 3 सर। देखो पढ़ो एक बार जरा, 2 या 3 दिया है, मार्जिनल 3 है। 3 मार्जिनल और 3 कंडीशनल, टोटल 6% दिए है ना। In a manufacturing plant, machine A produces 10% of a certain product. Machine B produces 40% of this product. Machine C produces 50%.
इन तीनों का टोटल करोगे तो 100%, डेसिमल में निकालोगे तो 0.10, 0.40 एंड 0.50, जिसका टोटल होता है 1। तो ये मार्जिनल है, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। पीए Yes, sir. 10%, पीबी 40%, 0.4, पीसी 50%। इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया होगा, वो तो मैं बता दूंगा। सेकेंड मेथड है ये टेबल बना के सॉल्व करना। ये टेबल बनाओ और सॉल्व करो, दिस इज द सेकेंड मेथड, इसलिए मैंने यहाँ पे और लिखा है। और ये तो समझो यहाँ पे समझेगा या नहीं समझेगा, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो तुम लोगों को बहुत इजी लगेगा। तो देखो ये दिया था पीए, पीबी, पीसी, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट। उसके बाद मैंने बोला अगर 3 मार्जिनल दिया है तो 3 कंडीशनल, और कंडीशनल में जो मार्जिनल होगा दैट विल बी गिवन। यानी मैंने पीए, पीबी, पीसी लिखा तो वो राइट में आएगा स्लैश के बाद। उसके पहले क्या आएगा वो तुम्हें वर्ड यहाँ पे देखना है। यहाँ भी वो डिफेक्टिव वाला ही है। 5% ऑफ मशीन ए प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव के लिए हम डी यूज करेंगे। 12% ऑफ मशीन बी आर डिफेक्टिव, 8% ऑफ मशीन सी आर डिफेक्टिव। तो जो आएगा क्या दिया है, डी स्लैश ए 5%, डी स्लैश बी 0.12, डी स्लैश सी 0.08। तो मैंने क्या ले लिया, डिफेक्टिव ले लिया। यहाँ पे लिख भी दिया कि मैं डी क्यों यूज कर रहा हूँ फॉर द वर्ड डिफेक्टिव। एग्जाम में ये भी लिख देना क्योंकि हम लोग डी यूज कर रहे हैं। ऐसे तो मार्क्स कट नहीं होते, बट मैंने ये पूरा प्रॉपर, ये उससे भी सिंपल है। 4 या 6 दिया होगा, ये तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब ये टेबल तो कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी मशीन या जो दिया है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC। फिर ये जो मार्जिनल दिया है वो प्रायर करके कॉलम होता है, उसमें वो तीनों लिख देना है। प्रायर मतलब मार्जिनल, जो पहले से दिया हुआ है, पहले से है। और फिर जो कंडीशनल दिया है वो किसका कंडीशनल है, डिफेक्टिव। वो प्रोबेबिलिटी, ये जो फर्स्ट वर्ड है तो वो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, वो लिख देना है। यानी जितना भी ये मार्जिनल दिया है वो लाइन से लिख दो, जितना कंडीशनल दिया है वो लाइन से लिख दो। बस ये याद रखना है कि ए के सामने डी ए का लिखोगे, ए के सामने डी बी का नहीं लिखोगे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड में भी इंटरसेक्शन ही ढूंढा था, बट वहां हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है। इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मिलता है ना, मैंने बोला फर्स्ट मेथड में। तो 0.10 और 0.05, और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है तुम लोगों के लिए। ये फाइल मैं शेयर करूंगा कि ये गिवन रहेगा प्रायर कॉलम, ये मार्जिनल, कंडीशनल ये भी गिवन रहेगा 2 या 3। इंटरसेक्शन कैसे निकालना है यहाँ पे लिख दिया है, प्रायर इनटू कंडीशनल। ये तुम्हारा इंटरसेक्शन होगा, और फिर इंटरसेक्शन का टोटल लेने तो तुम्हें आता है। फिर पोस्टीरियर निकालना है, तो A डिवाइड बाई सी, B डिवाइड बाई सी, ये पोस्टीरियर। और ये पोस्टीरियर में जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। बस अब देखो आगे बताता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई किया तीनों को, ये आ गया 0.10 इंटू 0.05 दैट इज 0.005, 0.40 इंटू 0.12 0.048, 0.50 into 0.08, 0.04. Take the total of all this, that is 0.093. यहाँ पे भी हमने वही किया था, इसमें भी पहले हमने इंटरसेक्शन किया था तो वही किया था, मार्जिनल और कंडीशनल को मल्टीप्लाई किया था और फिर हमने ऐड किया था। तो यहाँ भी हम टेबल में भी वही कर रहे हैं, मार्जिनल और कंडीशनल को मल्टीप्लाई करके टोटल ले रहे हैं। तो ये वो मार्जिनल मिल गया जो हम फॉर्मूला से ढूंढते हैं। क्लियर है? अब करना क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये इंटरसेक्शन डिवाइड बाय दिस, यानी 0.005 डिवाइड बाय 0.093, तो तुम्हारा ये 0.054 आएगा। 0.048 डिवाइड बाय 0.093, तो तुम्हारा 0.516 आएगा। और ये 0.04 डिवाइड बाय 0.093, तो तुम्हारा 0.430 आएगा। और इसका अगर टोटल करोगे तो मैंने बोला 1 आना चाहिए, 1 आएगा ही, वो तो डेफिनेटली 1 ही आएगा, मिस्टेक होने का इसमें चांस ही नहीं है। बस इतना सिंपल स्टेप है,
ये ज्यादा इजी है कि वो ज्यादा इजी है? ये टेबल वाला। देखा, तो ये बोला ना कुछ है ही नहीं, ये वाला ये 3 दिया है, यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, टोटल लिया, फर्स्ट नंबर को टोटल से, सेकंड नंबर को टोटल से, थर्ड नंबर है तो टोटल से, और जो भी अब पूछेंगे वो ये 3 में से कोई आंसर होगा। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो इतना सा बस सॉल्यूशन है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में सम सॉल्व। अब ये जो 3 है ना, ये क्या है? सिंपल है, यहाँ पे देखने का, यहाँ पे क्या ए है, तो हम ये फर्स्ट जो है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका उल्टा है, सिंपल, जो भी कंडीशनल दिया है ना, दिस आंसर आर अपोजिट ऑफ दिस। फर्स्ट क्या था, यहाँ पे पी डी स्लैश ए है, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, पी ए स्लैश बी। सेकेंड पी डी स्लैश बी है, तो हमारा सेकेंड वाला क्या है, पी बी स्लैश बी। और थर्ड वाला क्या है, पी सी स्लैश डी, जो मैंने यहाँ लिखा। यानी ये तीनों, इन तीनों प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन में हो सकता है तीनों पूछे, सिर्फ एक पूछे, या 2 पूछे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाज, यानी सैंपल डिफेक्टिव है वो तो दे दिया है, वो गिवन है। तीनों का पूछा है, ए बी सी का। डिफेक्टिव है दैट इज गिवन। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा, यही पूछेंगे, मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है कुछ और पूछना। तो इसमें तो तीनों का पूछा है। सपोज यहाँ होता कि प्रोड्यूस बाय मशीन बी, तो हमें खाली बी स्लैश डी फाइनल आंसर ऐसे वर्ड, मतलब यहाँ मैंने वो नहीं लिखा है, थोड़ा टाइम देता तो, बट फिर ये स्टेटमेंट लिखना है जो लास्ट स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इज इक्वल टू फ्रॉम द अबाउट टेबल, ये वाला आंसर है। राइट? किसी को कुछ डाउट पूछना है? डेप्रिसिएशन अभी मैं परसों से चालू ही करूंगा। डेप्रिसिएशन लिखा है कि चली रही, बाकी लोग भी, तो आई विल स्टार्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? कल इकोनॉमिक्स का थोड़े सम्स डिस्कस करके, फिर 2 लेक्चर मैंने डेप्रिसिएशन का ही रखा है, टाइम टेबल मैंने डाला ही है, उसके पहले तो किसी का नहीं है ना सीईसी। अब ये 2 तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये लास्ट ईयर के 3 सम है, ये तीनों सॉल्व है। ये फाइल भी मैं भेज दूंगा नंबरिंग करके। अब 2 सम इस ईयर में बचे, इस साल में 2 सम बचे हैं, उसमें से एक मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा, और ये 11th वाला तुम लोगों के लिए सेल्फ प्रैक्टिस होगा, और इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने इसमें दिया ही नहीं है। देखोगे तो देखो 12th है और ये 10th का सॉल्यूशन है, क्योंकि 11th वाला तुम लोगों को आ जाएगा। अब 10th वाला में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले तो तुम लोग गिवन आइडेंटिफाई करो, वो तो बहुत सिंपल है। 2 मार्जिनल है कि 3 मार्जिनल है, और 2 कंडीशनल की 3 कंडीशनल, वो तुम लोग यहाँ से 2 मार्जिनल और 2 कंडीशनल है सर। हाँ, तो पहले लिख लो, नोटेशन दे दो जो देना है उसको तुम्हें। तो ये बेस, और जो अभी मैंने वो जो ऊपर जो 3 सम सॉल्व किए ना, जिसमें वो हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब में से तुम्हें 15 से लेके 25 मार्क्स का आने का चांस है। 15 मार्क्स तो मिनिमम, 25 मार्क्स तक आएगा, यानी 100 में से मिड सेमेस्टर का 25 मार्क्स, ये 6 सम सॉल्व करके खत्म। लिख लिया? अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट क्या है पता है, ये जो पूछा है ना, वही दिया है कि चलो 2 सप्लायर है और एस, तो पी आर पी एस मैंने करा यहाँ पे, तो
65% कैसे निकाला वो भी दिया है, और GS ने डायरेक्टली दिया नहीं था, ऐसे लिख दिया था रिमेनिंग। तो मैंने बोला कि जो टोटल होता है वो 100% होता है, तो 65% अगर R बना रहा है, R हमें सप्लाई कर रहा है, तो S क्या हुआ 35% सप्लाई करेगा, वो तो ठीक है, पता चलता है। अब यहाँ पे ना मैंने D को डिफेक्टिव लिया है और ND मतलब नॉट डिफेक्टिव। क्यों पता है? देखो यहाँ पे ना अगर ये खाली पूछते वो लोग फाइंड द प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम सप्लायर S, knowing यानी given that the component pickup is bad मतलब डिफेक्टिव, डिफेक्टिव गिवन है और S का प्रोबेबिलिटी, तो वो तो हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर उसका उल्टा पूछेंगे कि नॉट डिफेक्टिव या गुड, तो क्या करना है? तो एक स्टेप और बढ़िया, तो यहाँ वही बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कम फ्रॉम सप्लायर R गिवन दैट इट इज गुड यानी नॉट डिफेक्टिव। तो हमें R/ND ढूंढना है और S/D, क्योंकि जो दिया है वो डिफेक्टिव का दिया है, तो R/D और S/D तो हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर R/ND या S/ND पूछा है तो हमें ND/R और ND/S भी ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढना बहुत सिंपल है, हमें ये पूछा है R/ND और S/D, राइट। अब पहले हम आ जाते हैं ये S/D के लिए, तो तुम लोग ढूंढो, चलो S/D, ये S/D ढूंढो जो अभी टेबल बनाया वैसे ही, उसमें तो कुछ ट्विस्ट नहीं है, तुम लोग ढूंढो और बताओ मुझे टेबल का फॉर्मेट देखना है कि पता है? ये 2 दिया है, ये 2 दिया है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल लेना है, इंडिविजुअल को टोटल से डिवाइड करना है। तो S/D का मुझे खाली S/D का आंसर चाहिए, S/R का नहीं चाहिए। तो S/D का आंसर, तब वो टेबल बना के फिर जो भी आ रहा है मुझे बताओ तुम लोग। सर S/D का आंसर मेरा तो 0.931 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं और भी किसी ने किया है। जीरो पॉइंट 931। किया हुआ है ये S/D का, मेरा तो अलग आ रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक किया। देखो पहले तो ये 2 लिखा ना तुमने, 0.65 और 0.35, हाँ वो लिखा। फिर 0.02 और 0.05, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 0.65 इंटू 0.02, तो ये आ रहा है कि कुछ और आया? और फिर 0.35 इंटू 0.05, तो ये आएगा। मेरा भी मिस्टेक हो सकता है, मैंने तो कैंसी में वैसे किया था, मिस्टेक तो नहीं होना नहीं चाहिए। सर, नहीं, और मेरा फिर ही गलत है, एक Then- डेसिमल गलत हुआ था। ओके, और फिर इन दोनों का टोटल ये आ रहा है
फिर 0.13 डिवाइड बाय दिस टोटल, तो ये आएगा 0.426 और 0.0175 डिवाइड बाय दिस, तो ये आएगा 0.574। अब हमें S/D यानी ये सेकंड वाला, इधर S है ना, तो आंसर है 574, 0.574, और इन दोनों का टोटल 1 आना चाहिए जो R है। तो कितना सिंपल है ना, बस क्लियर है ना। ये वाला तो S/D वाला तो सबको क्लियर है, बट अब ये ND वाला, अब देखो ND, क्योंकि हमें R/ND था, तो अभी हमें ये तो D है, तो यहाँ पे प्रायर में तो वही आएगा जो मार्जिनल है, लेकिन कंडीशनल में D वाला नहीं लिखेंगे, ND वाला लिखेंगे। तो ND वाला तो दिया नहीं था, D/R दिया था, तो ND/R क्या हो जाएगा, यानी R जो बनाता है उसमें से 2% इफेक्टिव है, तो 1 - 2%, तो ND/R में से ये माइनस करेंगे तो ND/R 98%, अच्छा है, गुड है। वैसे S जो बनाता है उसका 5% इफेक्टिव है, तो नॉट डिफेक्टिव हो जाएगा 1 - 5%, 0.95। तो पहले ये निकालना है और ये वाला कंडीशनल में लिखना है, क्योंकि जो R/ND ढूंढना है, तो कंडीशनल में ND वाला कंडीशनल लेना है, ना कि D वाला, when they are asking the opposite, like in this question। गुड दिया है यहाँ बैड, गुड मतलब नॉट डिफेक्टिव, बैड मतलब डिफेक्टिव। तो बस एक उतना सा ट्विस्ट और हो सकता है, बट ये भी एग्जाम में शायद ही आएगा, बट फिर भी याद रखो आगे कि उल्टा पूछा है, तो जो कंडीशनल दिया है उसका भी उल्टा वाला, यानी 1 में से वो माइनस करके जो बचेगा वो कंडीशनल में देगा। फिर आगे का वही स्टेप, दिस इनटू दिस और फिर दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये क्या आ जाएगा, R/ND 0.657, S/ND 0.343। ये कॉलम D वाला है कि ND वाला, ये D वाला है तो R/D, ND वाला है तो R/ND आएगा। ये यहाँ पे D लिया है, तो दो अलग अलग टेबल मैंने बनाए, क्योंकि एक गुड का पूछा था, एक बैड का पूछा। समझा क्या ये वाला, क्यों हमने उल्टा किया वर्ड। बाकी बस इतना ही है, ये तो P डिवीजन का फाइल था, तुम लोगों को बाकी डिवीजन भी शेयर करना, कुछ और है नहीं। आई होप किसी को डाउट है, क्लियर है। ये फाइल मैं शेयर करूंगा 07 वापस से, और जो पास्ट ईयर के वो 3 सम सॉल्व है बेस के, वो मैं वापस शेयर करता हूँ, ठीक है ना। कल इकोनॉमिक्स